क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या? Now, after Christ University takes the entrance exam, within a week they will give you the micro presentation and the interview dates. Now, this time you guys are having an option to select when you're filling up the form. So fill it wisely. Ensure Sunday ना भरना. Reason being Sunday को कई बार कोई और entrance exam हो सकता है तो clash ना हो जाए. Fill it on Monday, Tuesday, whichever dates you have available with. Now micro presentation में क्या होता है? They're gonna give a topic to you to speak upon. कोई Microsoft की presentation नहीं है on the PPT PowerPoint पे. It is basically kind of extempore. They're gonna give you a topic of their own choice and you have to speak on that for 90 seconds at least minimum. And along with that, they're gonna have some questions to you, which gonna check your soft skills as well as your academic skills. They're gonna check why you want to join Christ, and there are so many other things. Let's see what all kind of topics and what all kind of questions they ask you. On the basis of the past experience of our students, we have some of the questions on the screen if you guys see. So basically the question they have, that is why Christ. Then they ask why the Bangalore campus. If you are filling up for Bangalore, then why Bangalore or by NCR. Introduction of your, which is basically consists of your name, your location, your parents, details of it, and also your academic, your strengths, your weaknesses, your favorite subject. They may ask, but they will not ask the question from that. That also happened with some of our students. They just ask it for the sake of asking it. Then what are your favorite? What were the subjects you had in class 12th? Apart from that, marks in class 10th and 11th. What are your expectations? Because तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? एंश्योर क्राइस्ट जो है एकेडमिक से बहुत ध्यान देता है. सो ये कुछ सॉफ्ट स्किल क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको शो करेंगे प्रॉपर इंटरव्यू हुआ कैसे. अभी के लिए क्रक्स है टू प्रिपेयर. कोई 12th का एग्जाम पेंडिंग तो नहीं है. Why a BBA or BCom honors or law or psychology or CPENG or JPENG or Eco honors, whatever course you are filling up for. Why management? That is also a part of that. So what else they gonna ask? Why management? या फिर why legal inspires you? So these all kind of questions they're gonna ask. Some more questions like they have. This is why. What do you mean by financial management? After the course, what are your plans? Short-term plans and long-term plans. Your hobbies, interests, about your father's business. And if you said that you want to expand it, then how you want to expand it? Your topics which interests you. What do you want to become in future and how Christ will help you? A very tricky question. How Christ will help you? So for that you have to go for the Christ website and check out the answers from there. You can check the curriculum, you can check the program outcome, you can check how the development happens in Christ, and that you have to speak in the interview so they can know that you have done some research and that's how you are coming up for the Christ. Do not just say it is not the best university and this will help me out. Tell some facts. Any extracurricular activity if you have, and the best thing about you. The best thing, that means they're talking about the strengths. Another question which they have, that suppose I met you after 7 years of, after you 3 years of your Christ, that means 10 years के बाद, तो आपका ड्रीम क्या होगा? ड्रीम अबाउट योर कंडीशन एंड योर सेल्फ. तो दिस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन क्राइस्ट आस्क्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन एंड द इंटरव्यू क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट एल्स दे आस्क्स. और क्या पूछते हैं वो भी चेक कर लेते हैं. उसके अलावा देयर आर क्वेश्चन द करंट अफेयर्स आल्सो व्हिच दे आस्क. There are 2 more questions on the personal round they have. Recent book you read. If you get a chance, what would you change in society? So these are also some kind of questions they get. The next they have current affairs से question पूछे जाते हैं. Normally symbiosis में बहुत सारे पूछे जाते हैं, but Christ में भी पूछे जाते हैं. So the questions like Governor of RBI, Finance Minister of India, ये लेस कोरोना वाला केस अब दोबारा आ रहा है, तो they may टेक टॉक एनीथिंग अबाउट कोरोना, कोविड के बारे में दोबारा पूछा जा सकता है कुछ ना कुछ. IMF का फुल फॉर्म, एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग. तो मोबाइल बैंकिंग, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स थिंग यू हैव, so they may ask the questions from here also. And what do you mean by auditing? Suppose you're taking BCom honors, then this question may be asked to you guys.
नेम एनी 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक भी पता होना चाहिए ऑफ कोर्स. दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर. बच्चों से पूछा गया तो लिखा हुआ है, तो पब्लिक सेक्टर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से. देन लाइक द पर्सन वाज फ्रॉम कुरुक्षेत्र, तो पूछा गया हिस्ट्री ऑफ कुरुक्षेत्र. गवर्नर ऑफ हरियाणा, इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्टेट, तो आपकी सिटी कौन सी है उसके बारे में पूछा जा सकता है. वहां पे क्या फेमस है, व्हाट इट इज नोन फॉर, या स्टेट के बारे में पूछा जाएगा. गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कोर्स योर स्टेट, डिफेंस मिनिस्टर, रिसेंट न्यूज यू हैव हर्ड अबाउट. तो करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू बी स्ट्रेट वे अवे, यू हैव टू बी प्रिपेयर विद, वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन दे हैव क्वेश्चंस लाइक ब्रीफ अबाउट एनी सेलिब्रिटी. रिसेंट न्यूज में अगर कोई सेलिब्रिटी है, तो अगर आपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हो, न्यूज नहीं देखते हो, स्टार्ट वॉचिंग इट, स्टार्ट रीडिंग इट, इट गोना हेल्प. प्रेफरली द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, दोनों बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स माने जाते हैं. इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी ऑफ कोविड-19, होम मिनिस्टर. देयर आर सम ऑफ द करंट अफेयर्स. उसके अलावा पूछा जाता है आपके एकेडमिक से. एकेडमिक व्हेन आई से दैट मींस अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, लीगल, एनीथिंग दे मे आस्क. और एकेडमिक से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछने ही पूछने हैं उन्होंने, दैट्स फॉर 100% श्योर. बिकॉज एकेडमिक्स उनको स्ट्रॉन्ग चाहिए आपका. आप एकेडमिक्स से रिस्क नहीं ले सकते कि भाई मैं एकेडमिक से बिना चला जाऊं एंड आई विल गेट सिलेक्टेड. क्राइस्ट में ऐसा नहीं होगा. दे गोना हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एकेडमिक्स. सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन इकोनॉमिक्स. इफ आई से इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इन्फ्लेशन, फैक्टर ऑफ अफेक्टिव डिमांड, relation between demand supply and price, exception to law of demand, marketing, difference between selling and marketing, GDP और GNP में क्या फर्क होता है. उसके अलावा they have asked what is break even point. ये कुछ है क्वेश्चन है, जब डिटेल में इंटरव्यूज बच्चों के डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, बच्चों से पूछा गया जाता है तो आपको और क्लियर इंसाइट होगा. ये लोग स्टार्टिंग का तैयार करने के लिए थोड़ा सा ब्रीफ. इंटरव्यू की एंट्रेंस के बाद वी कैन प्रिपेयर यू फॉर द इंटरव्यू आल्सो, प्रेजेंटेशन आल्सो. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट, प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन. बिकॉज दैट इज व्हाट दे चेक द पर्सनैलिटी, एंड दिस टाइम इट इज नॉट ऑनलाइन, यू हैव टू गो टू देयर कैंपस. आप कोई भी कैंपस चूज करो, अगर आपने फॉर्म भर दिया यू विल सी इट. उन्होंने आपको ऑप्शन दिया किस कैंपस में जाके आपको अपना इंटरव्यू देना है. एंट्रेंस टेस्ट कौन सी सिटी में जाके आप देना चाहते हो, कौन सी स्टेट में देना चाहते हो, वो सब आपको ऑप्शन दे रहे हैं. मतलब घर से नहीं हो रहा कुछ भी इस बार. बहुत बढ़िया सिस्टम, वापस पहले जैसा. नाउ इट सेज लीगल, जो बच्चे लॉ की तैयारी करते हैं उनसे पूछा गया हाउ आर लीगल स्टडीज इंपॉर्टेंट सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट्स, क्राइम, कुछ भी पूछा जा सकता है. What are good and bad qualities of a lawyer? What is constitution? Artificial intelligence in higher and lower society? An out of the box question topic. ये लॉ वाले बच्चों से पूछा गया वो क्वेश्चंस है. अकाउंट्स के भी क्वेश्चंस है हमारे पास, बिजनेस स्टडीज के भी है. लेट्स चेक देम आल्सो. वो क्या क्वेश्चन है वो भी चेक करते हैं. देन डीमोनेटाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, कंज्यूमर राइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. अकाउंट्स में पूछा गया है आपसे डेप्रिसिएशन एंड वेरियस मेथड्स क्या कैलकुलेट करने के होते हैं, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, पेटेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स एंड व्हाई, वेयर डू वी रिकॉर्ड सैलरीज एंड व्हाई. कुछ भी पूछा जा सकता है, कहां पे क्या रिकॉर्ड करता है. तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो 2 सालों से, पता होना चाहिए. टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, आउटगोइंग सैलरी किस हेड में जाती है और कहां रिकॉर्ड की जाती है. दे ऑल आर द क्वेश्चन. ये क्राइस्ट के पेट क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछ लिए जाते हैं. दिस इज अ क्रक्स व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस. एक ओवरऑल दिया है आप लोगों को मैंने, बट डिटेलिंग भी करेंगे एज आई सेड ऑलरेडी. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट एंड नॉट रिकॉर्डिंग बुक ऑफ अकाउंट्स, व्हाई, सीएसआर, लिक्विड एसेट्स एंड एग्जांपल, रेपो रेट, एक्सप्लेन मनी मेजरमेंट, कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर किया जाता है, एंड व्हाट कैन बी डन इफ इट इज रॉन्ग. नाउ यू सी हाउ गुड इंटरव्यू दिस इज. दे गोना आस्क every XYZ question which you are preparing for your boards. That's what I say. Boards के marks important नहीं है, but knowledge बहुत important है. You should have all the knowledge. Then explain current assets, current liabilities, two sides of balance sheets. What is multi-purpose cash book?
बहुत क्वेश्चंस है, बहुत कुछ तैयार करना है इसके लिए. इट्स नॉट एन इजी एग्जाम. इंडिया का टॉप कॉलेज ऐसे नहीं मिलने वाला. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. बिजनेस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास अभी, वो भी देख लेते हैं. अकाउंट्स के बचे हुए हैं कुछ. लेट्स सी. देन यू हैव सिमिलरिटी बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट. उसमें क्या डिफरेंस है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस आ गए. एक्सप्लेन एनी टॉपिक फ्रॉम बिजनेस स्टडीज, विच एवर टॉपिक यू विल से. स्केलर चेन क्या होती है? ग्रेप वाइन क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, द फादर ऑफ business studies, the modern management. Then some more question we have which are the SWOT also, hierarchy, Maslow hierarchy. Then we have SWOT, business SWOT and personal SWOT. अब SWOT सबको पता होगा, that is strength, weakness, opportunities and threats. So personal level पे क्या होता है? That is also they gonna ask. वो भी ये पूछने वाले हैं आपसे. So that also you should know. तो ये सब का कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली योर इंटरव्यू गोइंग टू बी. अब प्रेजेंटेशन में क्या पूछते हैं, लेट्स चेक दैट आउट. तो इंटरव्यू की तैयारी इसको लाइटली मत लेना. अगर आपको प्राइस चाहिए, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू कांट टेक इट लाइटली. एज आई सेड, जो 90 डेज का कोर्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें एवरीथिंग वी गोना गिव इट टू यू. उसमें हम सब कुछ तैयार करवाने वाले हैं आपको. उसका पार्ट ये भी होगा. This also will be a part of that. Now micro presentation के टॉपिक है लास्ट ईयर के, वो हमने लिखे हुए हैं. Let's talk about that also. For commerce and management students जो BBA, BCom ऑनर्स या कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उससे क्या क्या इंडियन टॉप जो पूछे गए टॉपिक्स माइक्रो प्रेजेंटेशन के, 90 सेकंड्स बोलना होता है. एक्सटेम्पोर है, you will get 10-15 seconds to think about it. That's it, and you have to speak on Indian economy. Self-awareness is the key of success. Technology and education, binge watching, farm bills. Success is 99% perspiration, 1% inspiration. Plastic pollution, knowledge is a valuable asset. Unemployment in India, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. It happens in Haryana a lot. तो हरियाणा के बच्चे से पूछा गया. Women empowerment, digital India, artificial intelligence, corruption, is hard work necessary for success. Impact of farm bills, उस समय farm bills चल रहे थे, 2 साल पुरानी बात है शायद, या उसके बाद से पूछा गया होगा. Procedure on YouTube channel, how you will make success on YouTube channel, that is also a topic. Understand what kind of topics they have. बड़े general topics हैं, but बड़े specific intellectual topics they gonna ask. उस सब की तैयारी करनी बड़ी जरूरी है. Future of electronics, EVs in India, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, how this campaign change the orthodox mindset of people, specify कर दिया. Future of travel and tourism in India, infrastructure, do deadlines destroy creativity? Ethics in business, make in India. ये कुछ कॉमर्स और मैनेजमेंट से पूछा गया. आई हैव 60+ एमपीस के टॉपिक मेरे पास. ये सिर्फ 24 है जो लास्ट ईयर बार बार पूछे गए हैं. लेट्स टॉक अबाउट लीगल. लीगल में क्या पूछा जा रहा है? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 on students and teachers. Are beauty contest derogatory to the women? एक गर्ल से पूछा गया था ये वाला लीगल का. MP micro presentation. Why legal studies are required? What is the relevance of our constitution after so many years of independence? Benefits of education, artificial intelligence, climate change in India. Leaders are not born but made. Lockdown the only way was to cope up with the COVID-19. Democracy, how to stop migration, and should sports person be liable for the products they advertise? साइकोलॉजी वाले बच्चे का भी मेरे पास इंटरव्यूज हैं, बीबीए वालों का भी है, बीकॉम ऑनर्स वालों का भी है, लॉ वालों का भी है, जेपीएनजी वाले, मीडिया को मास कम्युनिकेशन, ऑल दोस काइंड ऑफ इंटरव्यूज गोना डिस्कस द नेक्स्ट क्लासेस. अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 1 by 1 कुछ इंटरव्यूज उठाएंगे कि इंटरव्यू में पूछा क्या गया है, ताकि आप उसकी भी तैयारी कर पाओ. एज आई सेड अर्लियर, कंटेंट नहीं दे रहा हूं यहां पर, सिर्फ आपको टॉपिक्स दे रहा हूं, टिप्स दे रहा हूं, क्या क्या तैयार करके जाना. जो हमारे साथ तैयार करना चाहते हैं, like we have already tasted the success of trials in last 4 to 5 years, you guys can prepare with us. You can contact us at the underside numbers in the description below, or you can just write to us in the comment section. Thank you so much for watching. Stay tuned, we'll get back to you with more information. Thank you so much guys, take care.